बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस एक्शन पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को पीटा जा रहा है। कल के एक्शन के लिए पीएम माफी मांगे, राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने चर्चा की मंजूरी नहीं दी। स्पीकर ने कहा सरकार से पूछना पड़ेगा, ये यूथ के भविष्य का मामला है। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। एंड हमने कहा कि देखिए, हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए, इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर, उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned, Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young people. They watch at Mr. Ambani's wedding, and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. So are you going to meet the injured students? Of course I'm going to meet the injured students. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? तो धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़कर अब मांग राहुल गांधी की हो गई है कि होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं घायल स्टूडेंट से भी जाकर मिलूंगा। 3 हिस्से में राहुल गांधी का बयान समझिए। पहला हिस्सा ये कि स्पीकर से हमने मांग की कि इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि सरकार से पूछकर बताएंगे। और जब पत्रकारों ने पूछा कि इसका मतलब क्या है,
तो राहुल गांधी ने कहा कि अब मतलब आप खुद निकालिए कि स्पीकर ये फैसला नहीं ले सकते कि वो नीट एग्जाम पर या छात्रों के साथ जो कल हुआ या प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ हुआ उस पर विपक्ष की मांग कर चर्चा कराए। दूसरा हिस्सा ये कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था जो कल हुआ, यानी कि जो कल प्रोटेस्टर्स पर हल्का बल प्रयोग किया गया है। दरअसल पूरा का पूरा विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो अपने भविष्य की चिंता को लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ लाठियों से हमला नहीं करना चाहिए था, उन्हें घायल नहीं करना चाहिए था। तीसरा हिस्सा ये कि राहुल गांधी अडानी और अंबानी का राग अलापने से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अडानी को खुश करना है, बिजनेसमैन को खुश करना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो आरएमएल जाएंगे, वो अस्पताल में जाकर घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बीच आपको ये बता दें कि जेपी नड्डा भी आरएमएल पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल प्रदर्शनकारियों का हालचाल लेने के लिए जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। डॉक्टर से घायलों के बारे में जानकारी ली है। राहुल और प्रियंका गांधी भी आरएमएल जाएंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ आरएमएल पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा जो इस मसले पर सीजेपी से बातचीत भी कर रहे हैं, प्रोटेस्टर से बातचीत भी कर रहे हैं, कल उनकी बातचीत हुई थी और आज वही जेपी नड्डा आरएमएल अस्पताल भी पहुंचे हैं। घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है और डॉक्टर से भी बातचीत करके पूरी जो सिचुएशन है उस पर जेपी नड्डा नजर बनाए हुए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आरएमएल पहुंचेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी आरएमएल पहुंचकर घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। तो सरकार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। सरकार ये कह रही है कि बातचीत के लिए हमने पहल भी शुरू कर दी है। कल एक राउंड बातचीत हो भी चुकी है। हालांकि 3 मांगे हैं जो सीजेपी की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है। पहली मांग ये कि जिन स्टूडेंट्स की जान गई है, जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक के बाद, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी ये कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और तीसरा ये कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो जंतर मंतर पर ही खत्म करवाया जाए। पवन नारा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, इस वक्त आरएमएल सियासत का केंद्र बना हुआ है, विपक्ष हो या पक्ष, तमाम नेता अब आरएमएल पहुंच रहे हैं और घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर कल 90 छात्र इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए थे। उनमें से 89 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक छात्रा साक्षी, जिसका नाम है, उम्र है 20 साल, कंप्यूटर की पढ़ाई करती थी, दिल्ली के शिव विहार इलाके में रहती है, वो उस भगदड़ में जमीन पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल उसे आरएमएल के आईसीयू में भर्ती किया गया है और उसी से मुलाकात करने के लिए पहले अरविंद केजरीवाल आए थे। अभी थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा जो रोहतक से सांसद है वो पहुंचे हैं और अब हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी यहां साक्षी के परिवार से मिलने आए हैं। हमने साक्षी के परिवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्ची का इलाज है, वो बेहतर हो, वो प्राथमिकता है, उसके अलावा वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते। चूंकि एक छात्र घायल हुआ है तो ऑब्वियसली विपक्ष के नेता उस छात्रा से मिलने के लिए यहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और है, 9 छात्र जो घायल थे वो गायब हो गए, मतलब अस्पताल को बिना बताए चले गए। एक छात्र अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस अपना डिस्चार्ज लेके गया और 79 छात्रों को आज सुबह तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी अभी फिलहाल एक साक्षी जिसकी हालत गंभीर है, आईसीयू में एडमिट है, उसको मिलने के लिए सभी नेता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, इंतजार करना होगा जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी हमारे सामने आएंगी। फिलहाल पवन, हम तस्वीर दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की। वो जेपी नड्डा जो कल प्रोटेस्टर से उन्होंने बातचीत की थी और ये आश्वासन दिया था कि जंतर मंतर पर धरना दिया जाए, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये आश्वासन दिया कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सरकार का रुख स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं है, और वही अब अस्पताल पहुंचकर घायल स्टूडेंट का हालचाल भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल, आज अगर जंतर मंतर की आपको बात बताऊं तो जंतर मंतर पर जो भी प्रदर्शन करने के लिए आ रहा है उसे आने दिया जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, प्रदर्शन पर कोई मनाही नहीं है। कल भी हमने देखा था कि कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर लगे थे जो रास्ता बता रहे थे कि प्रदर्शन स्थल आप टोल्स्टॉय मार्ग होकर जा सकते हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि वो दिखाई दे कि वो छात्रों को प्रदर्शन करने नहीं देना चाहती, और इसी कोशिश में
प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं है, छात्र आ सकते हैं। अभी भी 1000 के आसपास छात्र जंतर मंतर पर मौजूद हैं और नेता यहां पहुंच रहे हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो छात्रों के खिलाफ वो इस तरह की कोई धारणा बने। वो बात अलग है कि जब लाठीचार्ज हुआ तो 90 छात्र घायल हुए थे, पुलिस वाले 115 घायल हुए, जिनमें 5 डीसीपी हैं। तो ये पूरी तस्वीर है। अब इसमें कितनी सियासत है? बिल्कुल पवन, सरकार ये नहीं चाहती कि वो स्टूडेंट्स विरोधी दिखे, इसलिए कल हमने देखा कि जितना भी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हुई, दिल्ली पुलिस ने संयम बरतते हुए धैर्य के साथ कार्रवाई की थी ताकि बच्चों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार ना हो। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए। जंतर मंतर पर जहां सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहीं शंभू बॉर्डर पर भी एक मोर्चा खुल गया है। यहां बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच कर रहे हैं। वो दिल्ली में महापंचायत करना चाहते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसान इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने मल्टीलेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कंक्रीट के स्लैब रखकर अमृतसर दिल्ली रूट को बंद कर दिया गया है। रास्ते पर बैरिकेड लगाकर चेन से बांध दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। तो 13 महीने बाद एक बार फिर से शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ गई है। इससे पहले फरवरी 2024 में यह किसान प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आज एक बार फिर से किसान प्रदर्शन करने पहुंचे और इस बार किसानों का मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच में हो रही ट्रेड डील। तो देखिए, एक तरफ शंभू बॉर्डर पर हलचल बढ़ी हुई है, तो दूसरी तरफ आरएमएल हॉस्पिटल में भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि राहुल गांधी अब घायल छात्रों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ पहुंचे, फिर जेपी नड्डा पहुंचे और अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ आरएमएल पहुंच गए हैं घायल छात्र से मुलाकात करने के लिए। जिस तरीके से मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि एक छात्रा है जो गंभीर रूप से घायल है, उसी का हालचाल लेने के लिए तमाम नेता पहुंच रहे हैं। जी पवन, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, अभी अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल एक साथ यहां पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। जिस साक्षी से मिलने ये सब नेता आ रहे हैं, उसे 5वीं मंजिल के आईसीयू में एडमिट किया गया है। बाहर उनका परिवार मौजूद है। आईसीयू में तो नेता नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मां, बहन और पिता साक्षी के मौजूद हैं, जिनसे ये सब नेता मिल रहे हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी बाहर निकलकर क्या कहते हैं। अभी तक राहुल गांधी इस छात्र आंदोलन पर खुलकर नहीं बोले थे, लेकिन कल जिस तरीके से लाठीचार्ज किया उसके बाद जरूर उन्होंने एक्स मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया था। और उसके बाद आज अब राहुल गांधी घायल छात्रा से मिलने पहुंचे हैं, जिसकी हालत गंभीर है। अब बाहर आकर क्या कहते हैं, सबकी निगाह उस बात पर है। जाहिर है विपक्ष उस छात्रा की आवाज को बुलंद करना चाहता है जो घायल है, और उसको दिखाना चाहता है कि पुलिस एट्रोसिटीज में ये बच्ची घायल हुई है। तो विपक्ष का यहां पहुंचना लाजमी है, और वही होते हुए अब हम यहां देख पा रहे हैं। बिल्कुल पवन, देखिए राहुल गांधी ने बेशक कल इस मसले पर चुप्पी साधी थी, लेकिन आज सुबह से ही राहुल गांधी एक्टिव हैं। चाहे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करना हो, इसके बाद मीडिया से मुखातिब होना हो, सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाना हो, या फिर अब घायल छात्रा से मुलाकात करना हो, ये सब कुछ राहुल गांधी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आरएमएल अस्पताल में कैसे सियासी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, ये आप देखिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ घायल छात्रा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो इससे पहले जेपी नड्डा की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। जेपी नड्डा भी सरकार की तरफ से स्टूडेंट का हालचाल लेने के लिए पहुंचे। तो वहीं अरविंद केजरीवाल आज सुबह सुबह अपने साथियों के साथ संजय सिंह, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे और घायल छात्रा के परिवारों से मुलाकात की। घायल छात्र के परिवार से मुलाकात की है अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि सरकार स्टूडेंट विरोधी है, युवा विरोधी है, तो सरकार भी किसी भी सूरत हाल में इस प्रोटेस्ट के माध्यम से या इस प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके माध्यम से अपने आप पर ये आरोप नहीं लगने देना चाहती कि वो युवा विरोधी है या वो स्टूडेंट विरोधी है।
यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब आज एनडीए सांसदों के साथ बैठक की तो बड़े कड़े शब्दों में कहा कि नीट पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्र और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि काबिल वकीलों को इन दोषियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो नीट पेपर लीक करने के साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति है। विपक्ष जो है वो लगातार इस मसले पर एग्रेसिव है और सरकार से नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो साथ ही साथ ये आरोप सरकार पर लगा रहा है कि सरकार युवा विरोधी होकर युवाओं पर लाठी चार्ज कर रही है। इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखेंगे, जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, आरएमएल में क्या चल रहा है और सदन के अंदर क्या चल रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच शंभू बॉर्डर पर हाल कैसे हैं ये भी आपको बता देते हैं। किसानों का प्रोटेस्ट जारी है, शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है उसका विरोध किसान जता रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाकर महापंचायत करेंगे। लेकिन इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस वक्त मौके पर क्या चल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है उसके विरोध में आज दिल्ली में एक दिन की किसानों ने महापंचायत बुलाई थी, जिसमें पंजाब की तरफ से किसान मजदूर जो संघर्ष समिति है पंधेर ग्रुप की है, ये उसके बैनर तले पंजाब से किसान जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और शंभू बॉर्डर जो है एक बार फिर से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। पहली लेयर जो है आप देख सकते हैं सामने की बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं और दूसरी जो बैरिकेडिंग है वो सीमेंट के जो स्लैब्स हैं उनको लगाया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है उसको तैनात किया गया है और यहाँ पर बीएनएस की जो 163 लगाई गई है और किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। ठीक 1 साल पहले इसी तरह का माहौल शंभू बॉर्डर में तब देखने को मिला था जब किसान जो थे वो दिल्ली की तरफ यहाँ पे कूच किया था, लेकिन उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। बहरहाल ठीक उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस के जवान और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। 2 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। पहले लेयर में बैरिकेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं और दूसरे में सीमेंट के स्लैब है। देखिए, शंभू बॉर्डर पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की है ताकि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके। हालांकि किसानों को बार बार समझाया जा रहा है, बार बार किसानों को यह कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। किसानों के इस कूच का नेतृत्व किसान नेता सरवर सिंह पंढेर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, वो कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ दिल्ली जाकर बैठक करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अमेरिका भारत ट्रेड डील मंजूर नहीं है। मेरे साथ हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं स्वर्ण सिंह पंधेर, उनसे हम बात करेंगे। पंधेर साहब, आज दिल्ली जा रहे हैं, क्या मांगे थी, क्यों दिल्ली की तरफ आप जा रहे थे आज? देखिए, एक ही मांग थी, भारत अमेरिका जो FTA है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको हमारी रद्द करवाने की मांग थी कि वो देश के हित में नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आए थे। देखिए, जो प्रेस में आ रहा कि हम डेयरी क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है देश के सामने पीयूष गोयल जी असत्य बोल रहे हैं। जो व्हाइट हाउस से प्रेस रिलीज आई थी उसमें मक्का, कपास, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट और नागपति और सेब का जिक्र भी था और उसमें आगे लिखा था अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसके अर्थ आप जानते हैं, और बीच में लिखा था वाइड रेंज ट्रेड एग्रीमेंट। वाइड रेंज उसका अगर हिंदी में अनुवाद कर दो व्यापक व्यापारिक समझौता, तो व्यापकता में सब कुछ आ जाता है। अकेला इसमें कृषि नहीं है, मेडिकल क्षेत्र भी है, हमारी देश की जो सुरक्षा का वो भी क्षेत्र है, IT क्षेत्र भी है, सबको बड़ा समझौता है। तो जब आपने पहला समझौता किया, हमसे वार्ता नहीं की, हम स्टेक होल्डर हैं। अब जब आप इसमें अंतिम साइन कर दोगे, हमको थोड़े ना पूछोगे। अगर ये मसौदा इतना अच्छा है तो जन तक क्यों नहीं किया जाता? आप जन तक करें, देश की पार्लियामेंट की पटल पे क्यों नहीं रखते? आप तो नहीं बताते, अमेरिका हमें बताता। हमें लगता आप गोपनीय ढंग से ये समझौते को कर रहे हैं। हम रास्ता रोकने के पक्ष में नहीं है, हम देश की राजधानी में जाके चंद मिनट, चंद घंटे अपनी बात करना चाहते थे और हम पुलिस से कोई टकराव भी ना चाहते। अगर कोई समस्या थी हमें बता देते। अभी तक सरकारी तौर पर ना तो हरियाणा सरकार ने कोई प्रेस रिलीज जारी दी, हम नहीं जाने देंगे, ना दिल्ली सरकार ने कोई प्रेस रिलीज इस तरह की जारी किया। और टकराव उनकी ओर से है, हमारी ओर से बिल्कुल भी टकराव नहीं है।
तो अभी आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी मीटिंग करके आगे की रणनीति आपको बताएंगे। देखिए, टकराव किसान नहीं चाहते हैं, ये तो पंढेर ने साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी किसान बड़ी संख्या में बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, तस्वीरें ही बताइए, किसान अगर टकराव नहीं चाहते और पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो अब यहाँ का समाधान क्या है? यहाँ से आगे बढ़ेंगे कैसे अब किसान? देखिए प्राची, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो ये बॉर्डर की इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है। हालांकि जो ज्यादातर किसान जो हैं वो इससे काफी दूर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो इक्का दुक्का आपको जो किसान नजर आ रहे हैं, ये दरअसल वो किसान है जो यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं कि किस तरह की सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कैसे रोका गया है। इस समय जो तनाव है वो वैसा नहीं है जैसा कि फरवरी 2024 में हमें देखने को मिला, जब टीयर गैस के गोले यहाँ से चल रहे थे, तमाम तरह के यहाँ पर पक्के स्ट्रक्चर जो था वो बना दिया गया था कि ताकि किसान आगे ना बढ़े, लेकिन हल्का फुल्की बैरिकेडिंग जो है की गई। हालांकि सीमेंट के स्लैब रखे गए हैं और जो खबर है वो ये है कि हरियाणा की तरफ से कृषि मंत्री जो हैं वो कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर उनसे ज्ञापन लेंगे और उसके बाद ये ज्ञापन देकर जो किसान हैं वो हो सकता है कि वापिस पंजाब की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक दिन की महापंचायत थी। लेकिन जिस तरह से सवाल ये उठ रहे हैं कि 2027 में जो चुनाव होने हैं उससे पहले इस तरह के आंदोलन की आखिर जरूरत क्या पड़ी है। अभी थोड़ी सी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको हलचल जरूर होती हुई दिखाई दे रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा के कृषि मंत्री जो हैं वो इस तरफ आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवानों से शायद बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर एक अधिकारी हैं जिनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, वो वेट कर रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से कोई जो बड़ा अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके साथ बातचीत करेंगे। तो अभी थोड़ी हलचल तो जरूर बढ़ी है, बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने की कोशिश है। अब हरियाणा के कृषि मंत्री मौके पर पहुंचते हैं और किसानों से क्या बातचीत करते हैं, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। पुनीत, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।